Sure, sir. Sure, sir. We'll procure for library. Sure, sir. We'll do that. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everybody. All right. So we'll go for our next session now. And I guess you all know Professor Ramnath because he was the speaker from the first day, and he's a and the coincidence is that he's a very good friend of our first speaker, Professor Jagdish Kohli. So we'll, without wasting time, we'll request her to give his presentation on the applied ancient wisdom is for foundation for our educational career. Thank you, sir. Sir, just a second. Just a second, sir. We cannot hear you, so just a second. I'll make you a co-host. Now is it okay? Yeah, now it's okay, sir. Yeah, now it's okay. So today, as Dr. Akhil told you, that my topic is applied ancient wisdom, foundation for an educational career. So in this topic, I will discuss, as the title suggests, there are technical terms. First is the wisdom, then applied wisdom, then ancient wisdom. These are the very important words. Wisdom, ancient wisdom, and then applied ancient wisdom. And then on the basis of this wisdom, I have to discuss on the foundation for an educational career. What is the foundation? What should be foundation of an education career that I am going to discuss. First, I have already told in the first lecture, but even then I have to speak over here also. What is the wisdom? Actually, we will find so many words in dictionary, in English dictionary for wisdom, even knowledge, even information, even intellect. So many words are there. In Sanskrit also, the people are confusing when we'll translate in Sanskrit or in Hindi, that will come under wisdom means Gyan. But actually it is not Gyan. Gyan is different thing, wisdom is different thing. How you will come to know about the term wisdom exactly in Sanskrit? The Shankaracharya has used the term, that is the Vivek. So wisdom means Vivek in Sanskrit. That is most appropriate term for the wisdom. Sense of discrimination. Discrimination is not in negative sense only. Discrimination is the positive sense as well. So when we talk about the sense of discrimination, discrimination between real and unreal. What is real and what is unreal? Then between the self and the non-self. When we talk about the ancient Indian scripture, there are discussion regarding the Atma and Brahma. So that there is no exact term in English. So we used to say that is the self, consciousness. So many, 4 or 5 terms are there usually we use. Well, for the English, we use the self, the self. Self is the capital, not small. There is a difference between small self and capital self. So capital self is indicated for the Brahman, Atman. So between the permanent and the impermanent, what is the permanent and what is the impermanent? Discriminative inquiry. These are the meaning of the wisdom. Right intuitive discrimination, ever present discrimination between the transient and the permanent. So now this is the meaning of the wisdom. Now I come on the ancient wisdom. When we talk about the ancient wisdom, once Dr. Kohli told me that wisdom is wisdom, how it can be modern or how it can be ancient. So I explained, मैंने उनको यही कहा कि विजडम जो है वो कोई भी चीज जो है अगर उस ढंग से अगर आप सोचेंगे तो कोई भी चीज नई नहीं हो सकती, मॉडर्न नहीं हो सकता, क्योंकि 5 बेसिक एलिमेंट्स है, उसी से पूरा जो है ब्रह्मांड बनता है, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, समझे कि नहीं?
तो विजडम जो है वो एंशियंट विजडम जब हम बात करते हैं तो विजडम का मतलब क्या है, मैंने बताया विवेक, मैंने जो हमारे शास्त्रों में जो है, जो थॉट्स है, जो विचार है, जो नॉलेज है, क्या सही है और क्या गलत है, उसको समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। इसीलिए मैंने अप्लाई एंशियंट विजडम कहा। तो जब एंशियंट विजडम की हम जब बात करते हैं तो एंशियंट विजडम मीन्स द विजडम बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स like Vedas. The main original scriptures are Vedas, Indian scripture, Vedas, and then Upanishad also part of the Vedas. Then secondary scriptures that for the Sanskrit, in Sanskrit there are term for the scripture Shruti and Smriti. There are two divisions. So Gita, Ramayana, Mahabharata, etc. Other knowledgeable text comes under the Smriti. But Veda and Upanishad comes under the Smriti, and Gita and Ramayana Mahabharata come in the Smriti, and Vedas in Shruti. So this is the difference. Sorry, I was some confusion. Now basically thoughts and knowledge of sixth system of Indian philosophy is also included in ancient Indian wisdom. Besides Jaina and Buddhist thought, because these thoughts are also based on ancient Indian wisdom. Now all these sources present almost similar viewpoint, as their content attempts to teach morality, religious belief, and what society expects of a person. So now there is I can show the presentation also. Yes, sir. है ना? Yes, sir. That हाँ, will be just a minute. That will be nice. Yeah. Just a minute. So sir, first you have to open the presentation outside the Zoom, and then you have to share a screen. And then Okay. Yeah. I got it. Yeah. Now is it visible? No, sir. No. Just see now. No, sir. No, we cannot No? see that right now. I have opened, but Sir, I have to share it, na? yes, Share sir. screen. Here, share a screen, and then in the share screen you will see that in the icons you will see your to share. Now just see. Yeah, it's coming. It's coming. No, no, not yet. Not yet. No, sir, we cannot see right now. Just a minute. Yeah, probably it will come in a minute. I have click on the share screen. After that, what I have to do? Sir, when you are clicking the share screen, I think a window will open. It will show. Yes. It will show the icons which are open on your computer. So if your Okay. presentation is open on your computer, it will show that icon also. You have to click on that and then share. Yeah, we got it, sir. You got it, na? Yeah. So now just see, this is the human five body. Kohli ji also told earlier, also I have told you that the Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vigyanmaya Kosh, and Anandmaya Kosh. These five koshas are very important. That is depicted in the Taittiriya Upanishad and many other, 2 or 3 other Upanishad also. So these are the bliss body, wisdom body, mental body. So what we do, we take in reverse. Reverse means first we take the gross body, then energy body, then mental body, then wisdom body, then bliss body. Bliss body is the causal body, out of which the other 4 bodies are created. Then wisdom. Wisdom is the second, fourth one. That here, when we reverse it, then that will come on the second point. Wisdom body discriminates between real and non-real. Then Manomaya Kosh is the main. That consists of the mind and the 5 Jnanendriya,
It is a means of enjoying pleasure and pain. Now, when we talk about the applied ancient wisdom, it means the wisdom, knowledge, thoughts, whatever depicted in our ancient Indian scripture, we should apply in our daily life, whether it is personal life or professional life. So, when we talk about the topic, then what we have to do, making part of our personalities. The wisdom, ancient wisdom, the thoughts of the ancient wisdom, we should make the part of our personalities. So everything we have learned, thought about, or meditated on is a little different from what is usually taught in school and university. When we talk about the formal education or informal education, so this is the main difference. We already know. And now what is the exact education? Education is when we talk about the defining the education, just see, education, the process of receiving or giving systematic instruction. That is formal education, school, colleges, university, etc. This education provides only 10% of life fulfilling experience. Then second one, enlightening experience, that is the 90% of life fulfillment comes by arriving and sustaining enlightening experience. So actual education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits. So now come on the foundation. Education itself is a foundation of the human being. That is the foundation for career and foundation for lifestyle. Education is a process which aims to bring out the best from the latent faculties of man and to develop internal and cultural development. So education is very important. Education, as the concept of perfection is not clear. So what is the perfection? Real meaning of the perfection is not clear. People are getting confused. So we should take this term with extreme patience and care. What happened when we deal with someone, with some person, in any affairs, we are really concerned with minds. And hence all successful approach in life is psychological. चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, कोई भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, everything depend on the mind. In our scriptures, it is stated, that is, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्ष. माने सुख और दुख का कारण जो है वो मन ही है. मन पे ही डिपेंड करता है सुख की प्राप्ति और दुख की प्राप्ति. So it is very important. So now come on the nature of the mind. What is the mind? Nature of the mind, it is very important. I have classified into 8. The multifunctional mind wave of energy. That is the thinking process, feeling, wanting, perceiving, discriminating, relating, remembering, and imaging. So mind operates in the field of duality dominated by Rajas and Tamas. Sattva, Rajas, and Tamas, there are 3 attributes in Sankhya philosophy. So when it operates in the field of duality dominated by Rajas and Tamas, not from Sat. So Sattva, which creates a pathway to Vivek. Sattva is based on the Vivek, wisdom. It depends on the wisdom. Then Sattva will be there, otherwise not. Now, when we talk about in the degree, in education, different kinds of degree, the first step to becoming a teacher, when we talk about the foundation of education, then obviously we will talk about the teacher.
school teacher, college teacher, university teacher, or professional teacher. So the first step to becoming a teacher is to gain a degree in education. That is must. B.Ed degree should be there, M.Ed degree should be there for the professional colleges, B.Ed colleges, etc. But in the traditional colleges, in traditional university, we all know that their postgraduate is compulsory, PhD is compulsory, even the net qualification is compulsory. So many degrees are there, certificates are there. But even if you don't plan on teaching, even in a traditional education, degree can pave the way for your future life. So degree is important, there is no doubt. So a variety of careers in education we can see, such as education administration, like registrar, vice chancellor, different kinds of officers in educational institutions, EGC, ICPR, etc. So many. Counseling also, school counseling on school level. Then even social work can step into many different types of career. So now what are the foundations of education? So foundation of education indicates to a broadly conceived field of educational study, which drives its character and method from a number of academic disciplines, combinations of discipline and area studies including history, philosophy, anthropology, religion, etc., etc. So many subjects are there. Now, why education is the foundation for future work? This is also very important. In this context, education philosophy is a sense of trust in how children develop and learn and what and how they should be taught. Then education is considered to be the very strong foundation of our future. We all know. So if one teaches for an enlightening experience other than just teaching, then students will more eager to learn. We have to understand this point. This is a very important point. Whatever teaching the class, the curriculum, textbook in the classroom, that is okay. That is for getting the professional degrees, that is okay. Professional qualification, for getting the job perfection, etc. For employment point of view, that is important. But when we are talking about the enlightening experience, we are sharing our experience other than textbook, then students will more eager to learn, because you can just see in the classroom, you can think over it. So the concept of, so when we talk about ancient Indian wisdom, what is the main thing for the knowledge? Two points are very important. Jnanam tu kimartham yadi na hitaya. What is the use of that education? What is the use of that knowledge if it is not the welfare of the all, welfare of the world? First point. Dusra point, how we will acquire the knowledge, it is also very important. How we will acquire knowledge. From reading the textbook, so many sources of information there are available. Even on the, at present we see that in the searching, we are searching in the Google, and so many through artificial intelligence we can get so many sources. But what is the most important source that is of information that is true? We are getting from the resources, different kind of sources. But the main thing is the source of the wisdom. What is that wisdom? That is say Shraddhavan Labte Jnanam. In Gita we find there is a verse, Shraddhavan Labte Jnanam Tatparah Sanyate Indriya Jnanam Labdha Param Santim Achirenadhi Gacchati. How this verse is important in the context of foundation of education. हम लोग कहते हैं ना कि भाई श्रद्धा तो जो है, श्रद्धा और ये विश्वास और ये तो अंधविश्वास, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और लोग बोलते हैं ऐसा।
पर ऐसा नहीं है। हमारा जो एंशिएंट विजडम है वो इसको, श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब ये है कि अपने से बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना, शास्त्रों में श्रद्धा करना। देखिए, जो सामान्य टेक्स्ट है और जो शास्त्र है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि शास्त्र, स्क्रिप्चर्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, और जो सामान्य जो टेक्स्ट है दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उसको वो रिवील्ड टेक्स्ट बोला जाता है। वेद को जो है रिवील्ड टेक्स्ट बोला जाता है। रिवील्ड टेक्स्ट इसीलिए बोला जाता है कि ऋषियों ने अपना अनुभव जो है उसको शेयर किया है लोगों के साथ। उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा तो बाद में लोगों ने है, पर जो उनके थॉट्स हैं, एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने, अब वो लाइफ कैसा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित। तो वो जो विचार है ऋषियों का, क्योंकि वो रिवील्ड टेक्स्ट है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने इधर उधर से कलेक्ट किया और कर दिया। हम लोग सब सारी चीजें जानते हैं, पर जो क्या सही है क्या गलत है वो ऋषि में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचा अर्थ अनुधावती। जो ऋषि बोल देते हैं उसका जो है सरस्वती अनुगमन करती है। समझे ना, ये अंतर है ऋषि में और सामान्य व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति तो जो है सरस्वती का अनुगमन करेगा, और वहां जो है सरस्वती ऋषि का अनुगमन कर रही है। ये अंतर है दोनों में। तो इसीलिए वो कहा गया कि रिवील्ड टेक्स्ट है। ऑल वेदास आर रिवील्ड टेक्स्ट। बट बाकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन स्मृति, दैट इज नॉट रिवील्ड टेक्स्ट, दैट इज द मैन मेड टेक्स्ट। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसलिए वो कह रहा है कि श्रद्धा होना चाहिए, मतलब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। हमसे जो बड़े लोग हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो वही व्यक्ति नॉलेज को गेन कर सकता है, वही व्यक्ति वास्तव में रियल में एजुकेट हो सकता है। ये कहने का मतलब है। Those who have deep faith and have controlled their mind and senses. Controlling on the mind and senses are also very important. So they receive divine knowledge, real knowledge they receive. In this way, one attains transcendental knowledge and attains supreme peace quickly. अब जो है, there are so many points of that is the based on the ancient wisdom. या विद्या सा विमुक्त, ऐसी नॉलेज होना चाहिए, फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए एजुकेशन का कि जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति प्रदान करने का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं मुक्ति प्रदान करना कि जो है मृत्यु के बाद जो है आप व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, वो इसका अभिप्राय नहीं है। मुक्ति का है मतलब ये कि जो हमारे जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलना। तो एजुकेशन जो है वही सक्सेसफुल है और वही रियल एजुकेशन है। तो जब हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल कैरियर की बात करते हैं, तो फाउंडेशन में सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे एजुकेशन प्राप्त करना है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। जीवन में हमें कोई कष्ट बहुत कम से कम हो, शांति मिले, सुख मिले, रियल सुख मिले। एंजॉयमेंट से केवल मतलब नहीं है। इसलिए हमारे 4 परसूट बताया ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बेस पर अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की जब प्राप्ति हो गई तो काम की प्राप्ति, फिर मोक्ष की प्राप्ति, तो मुक्ति की प्राप्ति। तो यही कहने का मतलब। फिर दूसरा है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जिसको कि जो है कोहली जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे जो संस्कृत में एंशिएंट विजडम में स्वाध्याय टर्म है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, आत्मानम विद्धि, अपने आप को समझना, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग अदर इज वेरी डिफिकल्ट। सो पहले आप अपने आप को सुधारो, ये जो है मूल है। तो इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, कोहली जी ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। और लर्निंग थ्रू सेंसेस, जिसमें 10 इंद्रियां आ गई और वो 11वां माइंड। हाँ, जो वेदांत है वो 11 इंद्रिय मानता है। 10 जो है ऑर्गन, सेंस ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ एक्शन, 5 वो और 5 वो, 10 हो गए, और 11वां जो है वो मन। तो 11 इंद्रिय मानता है। तो लर्निंग, तो उन सब सारे चीजों से हम लोग सीखते हैं। 10 चीज का योगदान होता है। केवल ये नहीं कि हम आंख से देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सोच रहे हैं, केवल वही नहीं है। हर एक चीज का सीखने में, लर्निंग में जो 11 का 11 सेंसेस का उपयोग होता है। हाथ से भी हम सीखते हैं, पैर से भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो 10 और 11 जो है ये है। फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानाम आरोग्यम मूलमत्तम।
अब जो है, जब हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि उस एजुकेशन से क्या लाभ, जिससे कि हमें जो है संसार में कष्ट से छुटकारा ना मिले। कष्ट से छुटकारा मिलने का मतलब कि हम शरीर से, मन से, कायिक, वाचिक और मानसिक, माने तीनों प्रकार के से जो है हमें जो है किसी भी प्रकार का हमारे अंदर द्वेष की भावना ना आए, समझे ना। तो वही कह रहे कि धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तम। अब ये कह रहा है कि जो आरोग्य जो है, जो स्वस्थ होना, एजुकेशन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन के द्वारा जो है हेल्थ को जो है उस पर ध्यान देना। हेल्थ का मतलब ये केवल फिजिकल हेल्थ से नहीं है, मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ से, जिसको हम आजकल जो है ना लाइफ साइंस की बात करते हैं, जिसको योगा की बात करते हैं। तो लाइफ साइंस जो है वो बहुत जरूरी है, योगा जो है बहुत जरूरी है। और योगा जो है वो फिजिकल एक्सरसाइजेस से मतलब नहीं है, केवल फिजिकल एक्सरसाइजेस से तो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा, वो मन को भी कंट्रोल करता है। और उसके बारे में 2 श्लोक है, 2 थॉट्स है गीता में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समत्वम योग उच्यते, समानता, जो समानता की बात करता है, समानता की बात करता है कि मैंने हार्मोनी की बात करता है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते का मतलब हार्मोनी, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता जो है योग है। वॉट एवर वी परफॉर्म इन द प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन आवर डे टू डे एक्टिविटी, देयर शुड बी सम स्किलफुलनेस, कौशल होना चाहिए उसके अंदर, निपुणता होनी चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता। अब कर्मों में कुशलता का मतलब कि जो हमें नॉलेज है उसको अपने जीवन में उतार करके जो भी हम कार्य करें, वो हमारे जो नॉलेज है, हमारा जो विजडम है, उस पर आधारित होना चाहिए। वही योगा कर्मसु, वही योग है। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान देने लायक है। फिर उसके बाद जो है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एजुकेशन इटसेल्फ ये तो हो गया, ये नेचर ऑफ माइंड भी हो गया, डिग्री इन एजुकेशन भी हो गया। अब ये जो है ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 कैटेगरी। अब जब हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन किस लिए जरूरी है? देखिए, फाउंडेशन फॉर एजुकेशन कैरियर जो है, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा व्यक्ति का जीवन उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही स्वच्छ होगा, उतना ही सुखी होगा, उतना ही शांत होगा। वही उतनी ही व्यक्ति जब 12th क्लास पास करता है, तो आज की डेट में क्या है कि हर एक आदमी ये सोच करके चलता है कि आगे जो मैं करूँगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, मतलब डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। तो वो सेकेंडरी चीजें हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग का मतलब यही है कि जिस प्रकार एक बिल्डिंग जो है उसकी नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, तो उस महल का या उस घर का कोई लाभ नहीं। तो उसको फाउंडेशन को स्ट्रांग करना, फाउंडेशन को स्ट्रांग करने का मतलब है कि प्राइमरी से लेके जो सीनियर सेकेंडरी तक है, हायर सेकेंडरी तक जो है, उसको स्ट्रांग करना। वो जब स्ट्रांग होगा तो आगे जब हायर एजुकेशन में जब अगर हम जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऐसी नींव पर आधारित होगा कि जो आपको कभी कष्ट देगा ही नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, सुख और शांति और आपका जो है जीवन स्वस्थता में बीतेगा, ये कहना चाह रहा है। तो उसको लिए 3 क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं, जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट। फिर दूसरा जो है द मैन ऑफ द वर्ल्ड और द एक्टिव इन सोसाइटी इंक्लूडिंग द यूथ एंड द मिडिल एजेड मैन। देन थर्ड द रिटायर्ड पर्सन इंक्लूडिंग ऑल दोज हु डू नॉट लीड एन एक्टिव लाइफ but are in the evening of their age. Social regeneration has to keep in view all these stages of life and provide for their respective inner demand. ये कहना चाह रहा है। अब इसमें जो है ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो
फैमिली रिलेशन की तरह होना चाहिए। माने टीचर और स्टूडेंट्स में फादर और सन, फादर और डॉटर का रिलेशन होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट में गार्जियन और पेरेंट्स और गार्जियन का रिलेशन होना चाहिए। तभी हमारा जो है एजुकेशन कैरियर जो है वो स्ट्रांग होगा, उसकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। वी कैन लिमिट आवर सेल्फ टू माइंड ऑफ बडिंग जनरेशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है, जो प्राइमरी का जो बच्चा है, वहाँ जब हम जो शिक्षा देंगे, प्री स्टूडेंट जो है, जो मैंने नर्सरी से समझ लीजिए आप, नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक, द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि वहां बड़े आसानी से वो समझते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और उनको जो हम समझाएंगे वही समझेंगे। और होता भी ऐसा ही है कि जो टीचर क्लासरूम में समझाता है नर्सरी के बच्चे को या क्लास फर्स्ट के बच्चे को, वो उसको जल्दी समझ जाता है। उसी तरह से पेरेंट्स जो सिखाते हैं बच्चे को, वो उसे समझ में आता है। तो वो वही उसका संस्कार बनता है, वो संस्कार बनने का टाइम है, इसलिए वो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद एजुकेशन इज नॉट सिंपली ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज इन माइंड ऑफ स्टूडेंट, बट रियलाइजिंग देयर नीड्स, उसकी नीड्स कहाँ है, और उसको सप्लाई करना, उनको सप्लाई करना जो प्रॉपर थिंग्स है उसके साथ, और टाइम के अनुसार, प्रॉपरली ऑन राइट टाइम। इसलिए एक टीचर को जो है, जो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। जैसे हम बीएड जब पढ़ते हैं ना, बीएड और एमएड वगैरह, तो वहाँ एक पेडागोगी का एक अलग से सब्जेक्ट होता है। तो टीचर शुड बी ए गुड साइकोलॉजिस्ट एंड शुड नॉट कंसीडर टीचिंग एज एन ऑक्यूपेशन। उसको बिजनेस नहीं समझना चाहिए। आज की जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक क्या है कि चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट में तो है ही, प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट में भी अगर किसी टीचर से बात करेंगे ना, तो कहेंगे कि भाई, कोई कहेगा कि मुझे पढ़ाओ आप, तो सबसे वही कहेगा कि मुझे क्या मिलेगा, चाहे वो किसी रूप में हो। सबसे पहले बिजनेस की बात होगी। कोई हर एक कहेगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये जब तक नहीं निकलेगा दिमाग से, टीचर के दिमाग से, समझे ना, तो तक जो है ये फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। उसमें एक जनरेशन लगेगा, एक दिन दो दिन का काम नहीं है। मस्ट हैव द एबिलिटी टू बी लाइक्ड बाय द माइंड दैट नीड टीचिंग। एजुकेशन इज दिस एंजॉयबल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। अब करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि ना तो वो जो है उससे टीचर खुश है और ना ही स्टूडेंट खुश है, दोनों में से कोई खुश नहीं है, क्योंकि बेसिक जो फाउंडेशन है उसको हम भूल गए हैं। और कारण क्या है कि अथॉरिटीज जो हैं, जो अथॉरिटीज कंसर्न है, जो लीडर्स हैं, हमारे एजुकेशन लीडर्स हैं, concerned that education should be physical, intellectual, emotional, moral, active and spiritual all together। तो वो लोग भूल चुके हैं, वो इसकी बात ही नहीं करते, वो केवल डिग्री लेने की बात। अब आजकल क्या हो रहा है कि देखो, लेक्चरशिप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इतने एपीआई स्कोर होना चाहिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग पैसे दे दे करके एपीआई कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या एजुकेशन, क्या मतलब है उसका? उसका फाउंडेशन कभी स्ट्रांग हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो ये फाउंडेशन की बात हम कर रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कैरियर की जब हम बात करते हैं, तो फाउंडेशन स्ट्रांग का मतलब ये है कि वो मन से भी उसका जो है ना, बिल्कुल एकदम स्वच्छ होना चाहिए, कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, एथिक्स, बेस्ड ऑन एथिक्स। इसलिए हमारे कहा धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन का जो चार जो स्टेज हैं। तो पैसा भी हमें कमाना है, वो ठीक है। पैसा कमाने का मतलब केवल यही नहीं है कि पैसा कमाना, अर्थ का मतलब वहां पैसा कमाना नहीं है। वहां जो है अर्थ का मतलब ये है कि हर एक प्रकार की जो संपत्ति है उसको प्राप्त करना, केवल जो है मटेरियल पोजीशन से नहीं है, स्पिरिचुअल पोजीशन से भी है। अर्थ का मतलब वहां प्रयोजन है, उद्देश्य है, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो धर्म पे बेस्ड होना चाहिए। धर्म पे बेस्ड होने का मतलब कि वो एथिक्स पे बेस्ड होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अच्छे के आधार पे बेस्ड होना चाहिए। आप तो जब पैसा कमाने की बात करते हैं, तो चाहे कोई भी हो, अगर बुरा काम हो या गलत काम हो, पैसा आना चाहिए। तो केवल यही रह गया, यहाँ सेकेंडरी तो दूर की बात है, वो है ही नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। और अथॉरिटीज भी भूल गई है, और पॉलिटिकल लोग भी भूल गए, है ना, क्योंकि जब बाई चांसलर जब आता है, रजिस्ट्रार आता है, तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। तो क्या मतलब, वो मजबूरी है लोगों की।
तो क्या करेंगे आप? तो इसको हमें दूर करने की कोशिश करना है। तो ये जब ही दूर होगा जब हम ये भावना, जो स्मॉल बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके अंदर ये संस्कार डालने की कोशिश करें। सो इसलिए कहा कि इट शुड बी इन ए वे दे आर वेल सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस इन विच दे लिव. Now the technique of education should be considered keeping in mind the average of students, intelligence ratio, health and social condition, etc. तो उसमें जो 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट जो हमने लिया है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, फिर सेल्फ एडजस्टमेंट विद सोसाइटी एंड रियलाइजेशन ऑफ द अटेनमेंट ऑफ लास्टिंग वैल्यूज ऑफ लाइफ. अब इसमें ये जो है हमने दिखाने की कोशिश की है. देखिए आप जो है ये इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या चीज आ रहा है. मैं कोशिश करता हूँ इसको बड़ा करने का, अगर होता है तो. मेन पर्पस और जो एजुकेशन है ना, देखिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये इसमें सब आ गया. इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ गया, जो है सर्वांगीण विकास जो है मुख्य वो तो है ही. सर्वांगीण विकास का मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक, ये इंपॉर्टेंट है. फिर जीवन को पूर्णता प्रदान करना, परफेक्शन प्रदान करना, वो बहुत जरूरी है. फिर वो कैसे आएगा, तो वातावरण के अनुकूलन का उद्देश्य होना चाहिए. वातावरण अगर सही होगा तो ये सब पॉइंट्स है इसमें. व्यक्तिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, व्यावसायिक उद्देश्य, सबको समझाना. चरित्र निर्माण उद्देश्य, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चरित्र का निर्माण जो है वो मेन उद्देश्य है. वही फाउंडेशन से रिलेटेड, बाकी सारे हैं ही, और मेन ये है जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब now just see this, the self and mind ego attributes. Self and mind ego attributes means when we are coming self and mind. Self means आत्मा, जिसको हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं. कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड इंपॉर्टेंट है, पर वो क्योंकि ईगो से अटैच है. माइंड इज टेम्परेरी, माइंड इज ड्यूअल. दो तरह की बात होता है, अच्छा और बुरा दोनों सोचता है. तो मोस्टली क्या होता है कि माइंड जो जिसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं होता, तो माइंड जो है हमेशा गलत के बारे में ही सोचता है. फिर माइंड इज सफरिंग, इसीलिए वो सफर करता है. फिर इसीलिए अज्ञान होता है. वो सब क्यों होता है, क्योंकि अज्ञान के कारण. अस्तो मां सदगमय, वो पढ़ा ना, वो कोहली जी ने बताया. फिर माइंड बाइंड, फिर माइंड इज मटेरियल. माइंड इज मटेरियल. जब देखिए इंडियन विजडम का, इंडियन स्क्रिप्चर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो माइंड को भी मटेरियल मानता है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में माइंड मटेरियल नहीं है, वहाँ इमटेरियल है. हमारे यहाँ माइंड जो है वो मटेरियल है. इमटेरियल केवल एक ही चीज है, वो है सेल्फ, द सेल्फ. सेल्फ इज इटर्नल, सेल्फ इज सिंगुलर, दैट इज देयर इज ओनली वन. सेल्फ इज ब्लिसफुलनेस, सेल्फ इज कंपेशन, सेल्फ इज लिबरेट, सेल्फ इज स्पिरिचुअल. और स्क्रिप्चर की लैंग्वेज में अब कहेंगे तो एक ही टर्म है उसके लिए, एक ही वाक्य है उसके लिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. सत्य है, सत्य बेस्ड है. जो हम जिससे हम धर्म की बात कर रहे हैं, वो भी धर्म भी उसी का पार्ट हो गया. ज्ञानम जो है विजडम हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया. और अनंत माने उसकी कोई सीमा नहीं है, ना उसका आदि है और ना उसका अंत है, ये कहना चाहता हूं. इसलिए ऐसा है. अब जो है बीच में पे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव शोन ऑल दीज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. सो is the wholesome building up of the individual. Reference to the internal states of body, mind and intellect. ये मैं बता ही चुका हूँ. In this sense, true education is both a diving inward and a spreading outward. The knowledge of the world is not merely a collection of facts or data, information, but it forms a kind of insight into its inner workings as well. At least in so far as one's inner and outer life is inextricably bound up with them. With this knowledge, it becomes easy for one to discover the art of adjusting oneself with society.
This adjustment is not possible in an appreciable degree for one who has not acquired some amount of knowledge of the spiritual implication of the structure of human society. So these are the important. So there is no need of explaining all these things. These are the main point. Because the lack of time. The aim of education. अब aim of education जो है, that is the very important. Aim of education is important. Why it is important? Because we say that education is power, as it is stated. Education is within us. First thing we have to remember, according to our scriptures, education is within us. We have to manifest it. We can do anything and everything by education. Education is so powerful. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. The secret of life is temporary enjoyment, but the joy of learning through experience. So these are the very important. तो इसीलिए कहा कि या विद्या सा विमुक्त है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, आत्मानम विद्धि भी बता चुका हूँ. अब जो है all social evils are because of lack of proper education. This is very important. We have to keep in the mind. The foundation of the education. What is proper education? Although education is a highly practical subject, we should not think that the practicability of anything is called successful in life in political sense, as we see in today. क्योंकि जो व्यवहारिक उसी व्यक्ति को माना जाता है कि जो झूठ बोलता हो, जो लोगों को हाँ में हाँ मिलाता हो, और पॉलिटिकल थिंकिंग उसके अंदर कूट कर भरा हो. पॉलिटिकल माने जो खराब की थिंकिंग है. पॉजिटिव सेंस में भी पॉलिटिकल का यूज होता है, और वो पॉजिटिव सेंस में नहीं, निगेटिव सेंस में जो पॉलिटिकल को लिया जाता है वो कूट कर भरा हो, उसको सक्सेसफुल माना जाता है. एज ए पर्सन कैन बी सक्सेसफुल फॉर सम टाइम. इस तरह का जो पर्सन है वो थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल हो सकता है, मैनिपुलेट करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे कि हम बिजनेस वगैरह में मोस्टली देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, हर एक जगह देखते हैं. बट डिस्पाइट द सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सक्सेस, द पर्सन इज वेरी अनहैप्पी. वो खुश नहीं हो सकता, आनंद की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती. जिसको रियल आनंद कहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती. ये इसलिए है क्योंकि हम अपने काम में जो है केवल जो है व्यवहारिकता को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, जिसको लोग आज की लैंग्वेज में व्यवहारिक कहते हैं, जो कि हमें जो एसेंस ऑफ रियल लाइफ है उससे हमें दूर करता है. फिर भी when we build a house or start living in it, we are not always conscious of its foundation, nor is this foundation visible to our eyes. It is clear that the entire palace stands on the foundation. Similarly, human success in life may look beautiful, like a graceful and well-built building, but it cannot stand firmly until its foundation is strong. Our aim here will be how or what should be the basis of this education of life. ये important. तो जब हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें मेन चीज यही ध्यान रखना है कि हमारा फाउंडेशन जो कैरियर का, जीवन का, माने जो स्कूलिंग का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो एजुकेशन का पर्पस जो है क्या है कि टू लिविंग लाइफ एंड नॉट टू सफर. मैंने हमें जीवन में कष्ट नहीं है, उसका पर्पस क्या, हम लोग एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं कि जीवन में हमें कोई परेशानी ना हो, हम अपना लाइफ जो है अच्छी तरह से व्यतीत करें, हमें सुख की प्राप्ति हो, हमें शांति की प्राप्ति हो. पर यहाँ जो है ये पर्पस को लोग मिस करते हैं आज की डेट में. वो ये सोच करके नहीं करते कि मैं खुश होऊंगा, मैं सुख होऊंगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. वो तो ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा जी, इंजीनियर बनूंगा जी, ये उनका उद्देश्य है. माने वो जो अर्थ है वो काम की ओर है, वो धर्म बेस्ड नहीं है.
धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो जो पर्पस है वो केवल काम ओरिएंटेड है, मोक्ष ओरिएंटेड नहीं है। तो हमें जरूरत है कि धर्म भी काम ओरिएंटेड होना चाहिए। धर्म ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ओरिएंटेड भी हो, पर मोक्ष ओरिएंटेड, अगर आपको रियल वास्तव में सुख और शांति प्राप्त करनी है तो वो मोक्ष ओरिएंटेड होना चाहिए, मुक्ति ओरिएंटेड। या विद्या सा विमुक्त है। और मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाना और वो करना। मुक्ति का मतलब ये है कि रियल जो है उसको आनंद की प्राप्ति हो और शांति मिले जीवन में, किसी भी तरह के बखेड़े से अलग। समत्वम योग युच्यते, योग भी का भी जब हम बात करते हैं तो वो भी यही बात करता है, समत्व की भावना। दुख हो तो हमें कोई फर्क ना पड़े, सुख हो तो हमें कोई फर्क ना पड़े, हम एज इट इज रहें। जो निष्काम कर्म की जो भावना है वो इम्पोर्टेंट है, यही वो कहना चाह रहा। So, right type of education should have a very comprehensive view and should be beyond the boundaries of narrow religions or sects of any section of the society, and should be free from prejudices of caste, creed and color. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल जो है ना, जो लोगों की भावना जो चेंज हो गई है, उसको उनको ये सब चीजें जो है बिल्कुल एकदम ध्यान देना है, और ये हमें बच्चों को सिखाना है। केवल अपने नहीं सीखना, बच्चों को भी सिखाना, तभी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। अब कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री है जो आज का एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या चीज को, दोनों चीज को रिजेक्ट करता है। ऑल रिलीजन्स इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, और सारे जितने प्रकार के रिलीजन है उसको कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है, तो बेकार की बात है। सेकुलर धर्म निरपेक्ष की बात को जो है वो नकारता, कहता है कि निरपेक्षता की बात करता। इट ऑल्सो रिजेक्ट द इम्परेटिव ऑफ ह्यूमन एस्पायरेशन एंड मेक्स एजुकेशन ए डेड सिस्टम टू बी गवर्न बाय लाइवलीहुड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड की बात करता है, एक्सटर्नल की बात करता है। किंतु एजुकेशन इज नॉट ए मशीन ड्राइवेड बाय एन एक्सटर्नल इम्पल्स। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस in which life occurs and when it is put into the growth. Acha. And also, in addition to the supply of bread earning education also has to become a life earning education for the latter, which also supplies the soul for man to live. ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा क्योंकि टाइम जो है कम है, तो इसलिए मुझे और आगे मुझे करना है, फिर ये करता हूँ। एजुकेशन इज फॉर लिविंग लाइफ एंड नॉट टू सफर इट। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी मैं कर चुका हूँ। अब एक करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इज इम्पोर्टेंट। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल कैरियर की बात करते हैं, तो वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A correct appreciation of human values is essential before introducing any suitable method of education. It is impossible to solve the problem of the educational method so long as the authorities feel satisfied that the body of man is the final word about him. The mistake seems to be not so much with the students as with those concerned with the act of teaching for the students and the current which flows before them move with it from an early age. So ये मैं बता चुका हूँ कि जो है मेन जो है इसमें दोषी कौन है। टीचर्स तो दोषी हैं ही, ऑथोरिटीज भी दोषी है। A correct appreciation of human value is essential. तो इंडियन कल्चर हैज सर्वाइव ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में, एंशिएंट इंडियन कल्चर और एंशिएंट वेस्टर्न कल्चर में क्या अंतर है कि वहाँ का जो कल्चर है वो नष्ट हो गया एंशिएंट कल्चर, पर इंडिया का कल्चर जो एंशिएंट कल्चर है वो आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? तो वो ये कह रहा है कि इंडियन कल्चर हैज सर्वाइव ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, व्हेन अदर एंशिएंट कल्चर हैव डाइड आउट ड्यू टू देयर रिजिडिटी। वहाँ रिजिडिटी है इसलिए वो डेड हो गया, और इंडिया में का जो कल्चर है वो फ्लेक्सिबल है इसलिए वो आज भी जीवित है। और जहां ये रिजिड बना और लोगों की भावना जहां के अंदर जहां रिजिडिटी आई तो ये भी नष्ट हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू दैट इंडियन रिलीजन इज मेयर सुपरस्टिशन, मिथ
and fable as some modern scientific thinker in Oriental learning seem to think. Modern scientific वेस्टर्न स्कॉलर और इंडियन स्कॉलर भी, इंडियन स्कॉलर जो वेस्टर्न थॉट से प्रभावित हैं, तो वो जो है जब बात करते हैं तो वे कहते हैं कि वो ये तो सब अतिशयोक्ति है, जो वेद है उपनिषद है ये सब अतिशयोक्ति है, और वो जो है अपना तर्क देने की कोशिश करते हैं, समझे क्या? जो कि जो प्राचीन जो विद्याएं हैं या प्राचीन विजडम है उसको वो वैल्यू नहीं देते हैं, ये कह करके कि भाई ये तो अंधविश्वास की बात है और ये संभव ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, ना हम वेस्टर्न को डिस्कार्ड करना चाहते हैं और ना हम ईस्टर्न को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। दोनों में को तालमेल करके बनाना चाहिए। कोई 100% ना तो ईस्टर्न सही है और ना वेस्टर्न थॉट सही है। मैंने पहले बता दिया कि ऋषि में मैनमेड टेक्स्ट और रिवील्ड टेक्स्ट में क्या अंतर है। रिवील्ड टेक्स्ट जो भी होगा वो गलत नहीं होगा, पर जो मैनमेड टेक्स्ट है, चाहे वो गीता ही क्यों ना हो या रामायण ही क्यों ना हो, महाभारत ही क्यों ना हो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। पर वैदिक जब टेक्स्ट की हम बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, तो उसमें गलत कभी हो ही नहीं सकता। ये कहने का मतलब रिवील्ड टेक्स्ट है, वो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये सब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक श्रुति है एक स्मृति है, दोनों में ये डिफरेंस है। वही बात ये कह रहा कि अब कालिदास ने क्या कहा, बड़ा अच्छी बात कही है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। पुरानी सभी चीजें 100% 100% सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। कालिदास का जो है ना बहुत बढ़िया मतलब सत्य, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। तो इसका भी मतलब यही है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्राचीन चीजें है वो 100% सही हो और नई चीजें। हमें करना क्या है, इसीलिए मैं विजडम की बात कर रहा हूँ। अप्लाइड एंशिएंट विजडम का मतलब कि जैसे हमने कहा कि तुम सत्य बोलो अपने किसी भी व्यवसाय में, प्रोफेशन में सत्य बोलो, ठीक है। अब सत्य, अब दूसरा कहता है कि नहीं तुम तो झूठ बोलोगे तभी तुम्हारा काम होगा, सच बोलोगे तो नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है कि आप एक व्यक्ति जो है झूठ बोल के वो काम करे और दूसरा व्यक्ति सत्य बोल के काम करे, देखे कौन सा काम सही है। और जो झूठ वाला तो क्षणिक तो उसको फल की प्राप्ति मिल जाएगी, और जो सत्य पे दिगा रहेगा तो भले ही क्षणिक उसको सुख ना मिले किंतु उसको स्थायी सुख मिलेगा। ये सुख और दुख में अंतर है, ये कहने का मतलब है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम का भी मतलब यही है। कोई जरूरी, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है, पर वो जब भी कर सकते हैं जब उसे आप जीवन में अप्लाई करें। अप्लाइड एंशिएंट विजडम, पुराण मित्येव साधु सर्वम का मतलब अप्लाइड एंशिएंट विजडम, जो विजडम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी जो विजडम है उसको अपने जीवन में उतारो, अप्लाई करो। अगर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है देन यू एक्सेप्ट इट, और नेगेटिव रिजल्ट देता है देन यू डिस्कार्ड इट। ये अंतर है दोनों में। तो यही कह रहा है कि द गुड इज टू बी टेकन, ये तो हो गया। चलिए वो आगे जो है नेक्स्ट हम करते हैं। नेसेसरी टू राइट ए स्मॉल टेक्स्ट बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने क्या किया कि जैसे सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट है, ठीक है, सेकेंडरी के हैं और सीनियर सेकेंडरी के, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि प्राइमरी का जो है वो अलग, हायर सेकेंडरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, 3 टेक्स्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, या प्राइमरी का अलग कर दीजिए और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का कर दीजिए, और फिर कॉलेज के लिए अलग और यूनिवर्सिटी के अलग। तो 4 टेक्स्ट का मैं जो है प्रपोज कर रहा हूँ कि 4 टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें वैल्यूज हो। अब जो है एक दूसरी एक नई चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जरूरत किस चीज की है आज की डेट में, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन की जरूरत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन किसका बनाना, मैन का। मैन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्मॉल टेक्स्ट बुक होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन की बात करे। मैन का बताने का क्या मतलब हुआ कि हमें जो फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल कैरियर की बात कर रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन का मेन पर्पस है मैन को मैन न बना करके मैन को हमें ह्यूमन बीइंग बनाना। और वो कब बनेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस मैन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी व्यक्ति, और उस पर उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता है, ये कह रहा है। इस तरह से एक किताब जो है लिखा है जो 1882-28 में मैं नीचे लिखा हुआ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन इज ए वर्क बाय जॉर्ज कॉम्बे हु इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग द साइंस ऑफ फ्रेनोलॉजी।
अब साइंस ऑफ फ्रेनोलॉजी की बात कर रहा है और 1888 में लिखा है। तो ये क्या, इसने क्या किया है कि ये फ्रेनोलॉजी में क्या है कि वो स्टडी ऑफ ब्रेन है, स्टडी ऑफ माइंड है, इस तरह से कह सकते हैं हम उसको। फ्रेनोलॉजी का मतलब होता है मस्तिष्क विज्ञान, और मस्तिष्क में तो सारी चीजें आती हैं, तो उसकी ये चर्चा कर रहा है। अब ये 1888 में जो है कि स्कॉटलैंड का व्यक्ति है जिसने ये लिखा है, और वो भी लॉयर था वो शायद मेरे ख्याल से। तो पर ये चीजें हमारे एंशिएंट विजडम में स्टार्टिंग से, थ्योरी ऑफ कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं उसमें माइंड के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो प्रमाण की बात करते हैं, जब फिलॉसफी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, तो जब तक माइंड की स्टडी हम नहीं करेंगे तो अनुमान हो ही नहीं सकता, इन्फ्रेंस हो ही नहीं सकता। फिलॉसफी में जो होता है ना, जो प्रमाण है, दो मेन है, परसेप्शन और इन्फ्रेंस। तो परसेप्शन तो जो है वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, और इन्फ्रेंस का संबंध जो है वो माइंड से है। ठीक है, तो माइंड जो है वो, क्योंकि वो नॉलेज से रिलेशन है उसका, माइंड का इंटेलेक्ट से रिलेशन है ना। तो जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी कोई भी नहीं समझ सकते। ना तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी समझ सकते हैं, ना तो वेदांत फिलॉसफी समझ सकते हैं, ना मीमांसा समझ सकते हैं, कोई फिलॉसफी हम समझ ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ तो परंपरा से है, और ये 1828 में वो इसी चीज की बात कर रहा है, फेनोलॉजी की। और जो मैं जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैन के अंदर जो धर्म जो हमारा बेस्ड है, एंशिएंट इंडिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो वो धर्म के आधार पे व्यक्ति के जीवन का नियम बनाया जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं लाइफ की, जितनी अच्छाइयाँ हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू राइट इट्स मेड टेक्स्ट बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन इन द यूनिवर्स इन ए सिंपल वे। सिंपल वे, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, सारे को समझ में आ जाए। इट मे बिगिन विथ सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो, छोटे और स्टोरीज, छोटे छोटे स्टोरी हो। स्टोरी का मतलब कैसे हुआ कि जैसे हितोपदेश की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, 10 कुमार चरित्र की कहानियां हैं, आपने कादम्बरी बाणभट्ट का लिखा हुआ कथा है, उपन्यास है, जो संस्कृत का सबसे पहला, उसका जो स्टार्टिंग जो है, जो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, वो शुकनासोपदेश है। शुकनास को जो राजकुमार को उपदेश दिया गया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सब स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The book should contain information on the structure of the human personality in relation to the outer creation in the readable and intelligible। माने बहुत पढ़ने में आसानी हो, हमारे बुद्धि में आसानी से समझ में आ जाए, और संसार से उसका संबंध हो, समाज से उसका संबंध हो, इस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए। और स्टोरी पे हो। स्टोरी पे जब कहेंगे, अब होता है, देखते हैं ना हम लोग कि जो कार्टून होता है, तो छोटा बच्चा जो 3-4 साल का है वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है। तो यही कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट, स्पिरिचुअल कम टेम्पोरल इंपोर्ट ऑफ एंशिएंट विजडम। अब स्पिरिचुअल कम टेम्पोरल इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जो व्यावहारिकता है उसको हमको अध्यात्म से जोड़ना। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति व्यावहारिक नहीं है, या व्यावहारिकता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है। दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तो जो हायर क्लासेज के जो टेक्स्ट हैं, हमें उसकी चर्चा करनी है, एलिमेंट्री टीचिंग की बात करनी है। वहां भी स्टोरी जो छोटे छोटे, जैसे उपनिषद का है, वेद का है, जो जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि की चर्चा है, मैत्रेय की है। अब वहां जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट को लिए गए हैं जो डेली यूज की चीजें हैं, प्रोफेशनल में भी और पर्सनल में भी। जैसे लव क्या है, अब लव का जो है छोटे बच्चे जो है मिसगाइड होते हैं कि लव का मीनिंग क्या है। वहां याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के संवाद में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है कि व्हाट इज द लव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। तो वहां जो है, जहां भी जो उपनिषद की जब बात आएगी, तो अंत में हम सेल्फ पे ही पहुंचेंगे। वो कहता है कि कोई, मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं अपने पुत्र से प्यार नहीं करता, या पुत्र अपने पिता से प्यार नहीं करता। वास्तव में हम अपने आप से प्यार करते हैं। कोई धन से प्यार नहीं करता, व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, इसलिए वो धन से प्यार करता है। तो ये जो है दिखाया गया है कि जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। वो जो है वो वानप्रस्थ को जा रहे हैं,
तो दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं मुझे प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है, तो तुम बताओ कि जो है क्या करना चाहिए, तो किसको क्या दो। तो हे मैत्रेयी तुम बताओ, तुमसे सबसे पहले पूछता हूँ क्योंकि तुम बड़ी हो। तब वो जो, अब वो मैत्रेयी जो बड़ा समझदार थी और वो आध्यात्मिक विचार भावना की भी थी, उसको प्रॉपर्टी से बहुत कोई मोह नहीं था, लगाव नहीं था। तब वो कहती है कि महाराज ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी आप, जो पूरे संसार की जो प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है वो मुझे दे देंगे तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे खुशी मिल जाएगी? बोला नहीं। तो बोला मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह का वहां मतलब दिखाया, और फिर वहां प्रेम की बात प्रसंग आया। तो मतलब कहने का मतलब कि इस तरह का जो उपदेशात्मक जो कहानियां हैं वो टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे फाउंडेशन कोर्स जब हम टेक्नोलॉजी में जब जाते हैं ना पढ़ने के लिए, कोई सिविल इंजीनियरिंग करता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई कंप्यूटर साइंस करता है, कोई डिफरेंट कोर्स है टेक्नोलॉजिकल का, तो वहाँ एक फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो सभी के मतलब के होते हैं। तो यहाँ मेरा जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही सजेशन है कि वो हायर सेकेंडरी का जो टेक्स्ट है वो एक ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें वैल्यूज की बात की जाए। और वैल्यूज की बात बच्चों को सही सीधे मतलब बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, हो सकता है वो बात आपकी सुने ही ना सुने, पर उसी को अगर जो है आप जो है, आज तो बहुत सारे मल्टीमीडिया के थ्रू आप उनको समझाओगे, कार्टून के थ्रू, वीडियो के थ्रू, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे माध्यम है, तो उनको समझ में आएगा और वो इंटरेस्ट लेंगे। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब एक तो सबसे पहले बात जो है प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार डाला जाए कि उसको पढ़ना भी एक खेल की तरह लगे। जैसे कोई बच्चा है ना कि किताब लेके पढ़ता, बैठते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, होमवर्क करवाते हैं, वो बच्चा नहीं सुनता, आधा मन यहाँ रहता, आधा उधर रहता, पर जहां उसका मन जा रहा है खेल की तरफ, उसके बजाय उसका वो अध्ययन की ओर जाए, पढ़ने की ओर जाए, इस तरह का माहौल क्रिएट करना, इस तरह का संस्कार बच्चों के अंदर देना। पर वो जब ही देंगे कि जब उनके लायक, बच्चों की भावनाओं के लायक वो विषय होगा, ये कहने का मतलब है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि याज्ञवल्क्य और मैत्री वगैरह इत्यादि के जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो संवाद वगैरह दिए गए हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में है, मांडुक्य उपनिषद में है, वो सब थ्योरी ऑफ क्रिएशन की बात जो है जो दिया गया है, जो 5 कोशाज जो है वो थ्योरी ऑफ क्रिएशन ही है, वो उसको अच्छा से समझना, समझाना। फिर रामायण के टीचिंग्स की बात, राम का हम उद्देश्य दे सकते हैं, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, गीता को प्रपोज कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रॉपर और एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज होगा, बशर्ते कि उसके लिए एक टीम बनाई जाए जो बिल्कुल सिंपल वे में और जो सबको आसानी से समझ में आ जाए और इंटरेस्ट भी, तो जो है वो फायदेमंद हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। ऋषियों के जो है एग्जाम्पल देने चाहिए, जो लीडर्स हैं, एजुकेशन लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, जैसे नर नारायण है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, व्यास है, शुक है, दत्तात्रेय है, जड़ भरत है, बहुत सारे हैं, भरे हुए हैं, उद्दालक है, पराशर ऋषि है। फिर उसी तरह से जो ग्रेट किंग हुए हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे हरिश्चंद्र हुआ, दिलीप हुआ, चंद्रगुप्त कुमारी हुआ, जिसका चाणक्य जो है, चाणक्य ने जो पूरा एजुकेशन के माध्यम से चंद्रगुप्त को पूरा राज्य दिलवा दिया। भगीरथ है, रघु है, अज है, दशरथ है, जनक है, राम है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शॉर्ट लाइफ स्केचेज ऑफ टीचर्स लाइक शंकर, रामानुज, नागार्जुन, माधव एक्सेट्रा, इन सबका होना चाहिए। तुलसीदास, कबीरदास, ये सबके भी होने चाहिए, मतलब थोड़े इस तरह से हो, इंटरेस्टिंग वे में और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, ये कहने का मतलब है। विवेकानंद, अन्नी बेसेंट, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, राधा कृष्ण इत्यादि इत्यादि। टू गिव ए ब्रॉडर विजन ऑफ कल्चर, to point out unity underlying human aspirations, a separate section may be devoted to the lives and teaching of Buddha, Mahavira, Christ, Muhammad, etc. हमें ये नहीं सोच के चलना है कि ये मुस्लिम इस्लाम का है या क्रिश्चियन का है या ये सिख का है तो हमें लेना, हम हिंदू, ऐसे नहीं। वो तो धर्म को रिलीजन के सेंस में तो हमें लेना ही नहीं है, धर्म को हम नियम के सेंस में लेना है, यूनिवर्सल नियम के सेंस में लेना है, एथिक्स के सेंस में लेना है, व्यक्ति के अच्छाई के सेंस में लेना है हमें। क्योंकि वो जो है सत्य, चित्त और आनंद की जब हम बात करते हैं, जब प्रारंभ में जब सृष्टि होता है तो धर्म ही एक ऐसा था जो आरंभ में था,
सत्य, धर्म और रीत। धर्म जो है वो नियम है और रीत जो है वो संविधान है, और ये दोनों जो है वो सत्य के अनुसार काम करते हैं, माने धर्म के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब जो है दूसरा ये है कि इसी तरह से जैसे हमने टेक्स्ट बुक वगैरह बताया, उसी तरह से जो उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उसमें भी एक्सकर्शन, बहुत सारी चीजें जो है, जैसे कोई ओपन एनवायरनमेंट की बात करना। सो ये सब जो एजुकेशन कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल हम लोगों का जो है ना कैरिकुलम में है, और उस पर लोग ध्यान नहीं देते, सोचते ये सब तो पढ़ने से इसका कोई मतलब नहीं है, तो उस लोग वो ओवरलुक कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और पेरेंट्स स्टूडेंट्स का रिलेशन जो है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन पेरेंट्स की तरह, गार्जियन की तरह, फादर और सन की तरह, फादर और डॉटर की तरह होने के लिए गुरुकुल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। एजुकेशन इज फॉर लिविंग लाइफ एंड नॉट टू सफर इट, ये तो हो ही गया। अब इसके बाद जो है हमने उल्टा इसको कर दिया। अब आगे देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए इसमें प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हो गया। फिर 31 में आ गया गुरुकुल कॉन्सेप्ट। गुरुकुल कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गुरु के अंदर जो क्वालिटीज है उसको जो है टीचर्स स्टूडेंट्स को एडॉप्ट करना, और वो गुरुकुल में गुरु जो है वो, गुरु और टीचर का संबंध पेरेंट्स का संबंध होता है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का गार्जियन की तरह जो है वो टीचर्स होते हैं गुरुकुल में, इस तरह की भावना थी। तो पास्ट 40-50 ईयर्स हमने ये देखा है कि बहुत सारे ट्रेमेंडस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया। अब यहाँ जब कोई गुरुकुल बास की बात करेंगे तो लोग हंसते हैं, कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए जो मल्टीमीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो हमें जो है साइबर स्पेस जो है, गुरुकुल इन साइबर स्पेस, वो जो है वो कॉन्सेप्ट जो है हमें वहां लाने की कोशिश करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, वर्चुअल के अंतर्गत। तो साइबर स्पेस जो सराउंडिंग वेयर कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्किंग थ्रू मल्टीमीडिया, ये बहुत, उसके द्वारा हम एक दूसरे से संबंध। अब आजकल क्या हो रहा है, कोरोना में तो यही कर रहे हैं हम लोग, और अभी जो हम लोग ये जो जूम का जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है। may be regarded to the virtual computer world and more specifically an electronic medium used to form a global network to facilitate online communication। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है 32 ये है, ये हमने दिखाया कि गुरुकुल इन साइबर स्पेस में रिफ्लेक्टिव लर्नर, रिफ्लेक्टिव फैसिलिटेटर और वायरलेस नेटवर्क, ये कॉन्सेप्ट दिया है। दिस मॉडल ऑफ लर्निंग इन वर्चुअल स्पेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें दिखाया ए ग्लोबल वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोइंग थ्रू वायरलेस नेटवर्क, हैव नो नेशनल एंड रीजनल बाउंड्रीज, लर्निंग एंड लिविंग द ग्लोबल ह्यूमन इशूज, एंड सो इज द एजुकेशन फैसिलिटेटर जॉब इज टू हेल्प टू मैनेज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये जो है ना वो गुरुकुल को कॉन्सेप्ट को हम इस ढंग से कर सकते हैं। जूम का जो प्रेजेंटेशन हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ये भी इसका एक पार्ट है, ये भी गुरुकुल का ही कॉन्सेप्ट है। एक दूसरे से इंटरएक्टिव होते हैं, समझा ना, आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। वो तो ठीक है, सेमिनार है, लेक्चर है, इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज, वर्कशॉप है, ये सब में तो काम आता है। वैसे भी इंटरेक्शन भी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी स्टूडेंट टीचर से बात कर सकता है दूर रहते हुए भी, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो व्हेन एन एजुकेटर एंड लर्नर बिकम्स वाइज, जब दोनों बुद्धिमान हो जाते हैं, विजडम दोनों के अंदर आ जाता है, तो ही और शी विल बी सक्सेसफुल इन एनी कैरियर ऑफ लाइफ। ये हमें करना है, हमें ध्यान रखना है। So virtual reality will become even more accessible within everyday jobs, with people using it for medical training, new building design, training and learning and other experiences। ये आ ही गया, इसमें ट्रेनिंग लर्निंग सब आ गया, रिक्रूटमेंट वगैरह सब में यही सब काम आता है ये। अब जो है 34 कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हमने कुछ पॉइंट रखे हैं कि उसमें जो है क्या होना चाहिए कि जो मेन फीचर जो है हमारा, हम उसको यहाँ रिकॉल कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल प्रोसेस सक्सेसफुल कैसे होगा। तो सबसे पहला तो ये है ना कि जो अथॉरिटीज वगैरह को ये ध्यान रखना चाहिए
कि एनवायरनमेंट कैंपस का अच्छा हो। फिर उसके बाद जो है कैंपस बढ़िया होना चाहिए। कैंपस बढ़िया होने का मतलब कि वातावरण शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट जो है, उसमें किसी भी तरह की कॉम्युनल भावना या पॉलिटिकल भावना ना आए, जो कि आज कूट कूट कर हर एक जगह बिना इसके कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। तो वो जब तक दूर नहीं होगा ना, वो हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। जरूरत उसकी है। द इंस्टीट्यूशन शुड बी अनटच्ड बाय द कॉम्युनल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। फिर थर्ड पॉइंट, द अथॉरिटी शुड मैनेज टू इंश्योर एन atmosphere of the seriousness, effectiveness and high level of integrity in the premises of the institution। तीसरा, सर अब उसके बाद जो है, हेलो सर। हाँ Sir, हाँ actually, जी, we have run like more than 40 minutes over time. So now there will बस अब हो गया। अब ये बस ये स्लाइड है, वो खत्म है। okay. 1 घंटे का टाइम था ना। Sir, it started at 10 lunch, so it was like 10 to 11. But actually, Kohli sir session was also becoming late. हाँ हाँ हाँ। Was late. So नहीं, अब ये हो गया। अब ये 2 स्लाइड है, बस ये खत्म है। अब बाद 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो देयर शुड बी ऑर्डरली कंडक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये बता चुका हूं मैं। An appropriate textbook should be prepared keeping in mind the topics of the syllabus for boosting the confidence of the student, which is in their interest and which can prove to be welfare in future. So अब ये लास्ट स्लाइड है और example for others by his ideal personal। अच्छा, इसमें क्या, efforts to be made in Cyber Gurukul। Finally, the authorities of the institution should be successful. Thank you very much. Now it is completed. thank you, sir. Thank you very much, sir. It was very enlightening. I guess the people has really benefited from this. And if there is some questions, then I'll welcome the questions so that Yes, sir. yeah, so the sir can tell you the like if there is any question, please ask. Any query is there. Yeah. So if there is no question, then I'll thank sir. It was a very nice session. It was very enlightening how you Okay. told the ancient wisdom can be adapted in this era. So it's very nice, sir. We'll try to follow it. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you. All right. So okay. So we will be. It was our revisiting session for just a second. So yeah, it was our revisiting session. But what we'll do is we'll take 15 minutes break and we will rejoin in at 12. Okay.